ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں کالج جاتی تھی، آخری سال تھا۔ رات بھر امی ابو کی لڑائی جاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ کالج میں میرا پیپر تھا اور میرا جانا انتہائی ضروری تھا۔ بغیر ناشتے کے میں گھر سے نکل آئی۔ ذہن میں رات بھر جاری رہنے والی لڑائی جاری تھی۔ بس میں یہ بھی سب کچھ دماغ میں چل رہا تھا، آخر کب یہ سب ٹھیک ہوگا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ گھر کا سکون اس وقت میرے لیے انتہائی ضروری تھا، لیکن یہ سکون تو شاید اب زندگی بھر نہ مل سکے۔ میں نے خود کو کہا تھا۔ کالج آ گئی، اب بس اپنے پیپر پر توجہ دینی تھی۔ میں بھاگم بھاگ اندر کی طرف گئی۔ پیپر شروع ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی پیپر دینے کے لیے کرسی تلاش کی اور سر سے پیپر لے کر حل کرنے لگی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن دماغ پیپر میں اٹکا ہوا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے پرچہ مکمل کیا اور فوراً گھر کے لیے نکل آئی۔ آج کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے باہر نکل آئی تھی، اور وہی فقیر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر راستہ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری تیزی سے گزرنے کے باوجود وہ میرے راستے میں آیا اور حسب معمول ایک ہی بات کرنے لگا کہ جلد از جلد فیصلہ کرو، مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ بربادیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ میری برداشت کی حد اب ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا سب کے سامنے اسے اتنا ذلیل کروں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں، لیکن میں نے کہا تو صرف اتنا کہ وہ میرے راستے میں آ کر میرا پورا دن خراب نہ کیا کرے۔ اب اگر آئندہ اس نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے جواب پر وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا اور میں تل ملا کر رہ گئی تھی۔ آج کا دن ہی خراب ہے اور قسمت تو عرصہ ہوا خراب ہو کر اب تک گل سڑ چکی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم بس میں بیٹھ کر گھر کو نکل گئی تھی۔ ابھی میں بس میں بیٹھی ہی تھی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹائر پھٹ گیا۔ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ فقیر جب بھی کوئی الٹی سیدھی بکواس کرتا تو ضرور میرے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ محض اتفاق ہے یا اس کی کالی زبان۔ زندگی بہت مشکل تھی یا لوگوں نے بنا دی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ والدین کی شادی پسند کی تھی، لیکن جب ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کی ایک لمبی لسٹ سامنے آتی تو سوچتے کہ یہ دونوں شادی کے وقت اندھے تھے یا شاید محبت میں اندھے ہو گئے تھے، اور ان کی بینائی شادی کے بعد لوٹ آئی تھی، جس کے لوٹتے ہی ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ ہمارا بھرا پورا گھر تھا، ایک تایا اور 2 چچا، جس میں سے تایا اور چچا شادی شدہ تھے اور ایک چچا کافی چھوٹے تھے، یعنی ہم سے چند سال ہی بڑے ہوں گے۔ تایا کے 4 بچے تھے اور چاروں ہی شادی شدہ تھے۔ چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ چھوٹے چچا کنوارے تھے۔ دادا دادی حیات تھے۔ سب کا الگ پورشن بنا ہوا تھا اور سب کے پورشن میں سکون ہوتا تھا سوائے ہمارے۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑے نے گھر کا سکون برباد کیا ہوا تھا۔ ابو سب سے زیادہ کماتے تھے، لیکن گھر میں ایک دھیلا نہ دیتے۔ ساری کمائی اپنے ماں باپ اور بھائیوں پر لٹا دیتے۔ یہی وجہ تھی ان دونوں کے درمیان اختلاف کی۔ مہینہ شروع ہوتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ امی گھر خرچے کے لیے پیسے مانگتی اور ابو جواباً گالیوں سے نوازتے۔ ہم لوگ تماشا دیکھتے۔ جب ابو امی پر ہاتھ اٹھاتے تو سب یہ دیکھ کر بیٹھ جاتے، لیکن میں واحد امی کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کے لیے زبان بھی کھولتی اور مار بھی کھا لیتی تھی۔ سب ابو سے ڈرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی تھی اور کبھی نہ ڈری تھی۔ امی کا مطالبہ جائز تھا۔ 5 بچے تھے، ان کی ہر ضرورت تھی۔ گھر تھا، اس کا خرچہ تھا، وہ کیسے پورا کرتی؟ آخر ان کو بھی تو ابو کا خاندان پالنا تھا نا۔ یہ بات ابو نہیں سمجھتے تھے۔
दादी को सारी रकम देने के बाद अब्बू अम्मी को दादी के आगे फकीर बनाकर पेश करते कि जाओ जाकर उनसे मांगो, और दादी कह देती कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अम्मी की जिंदगी इसी में घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैंने अम्मी को कहा था कि वो पैसे वसूल करने की जिम्मेदारी मुझे दे दें और मैं उनकी नाक में ऐसा दम करूंगी कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। अम्मी ने ऐसा ही किया था। वो भी थक हार कर परेशान हो जाती थी कि आखिर क्या करें। हमारे घर में फाके होते थे और दूसरों के घर में से पकवान की खुशबू आती थी, वो भी हमारे ही अब्बू के पैसों से, और ये बात हमारे आसाब पर हथौड़े की तरह बरसती थी। मैंने अब दादी से पैसे वसूल करने की जिम्मेदारी ले ली थी। मैं उनके पोर्शन में जाकर तब तक घंटियां बजाती थी जब तक वो खोलती नहीं थी। यहाँ तक कि छोटे चाचा, जो कि कंवारे थे और किसी हद तक आवारा गर्द और नशे की बीमारी में भी मुब्तला थे, वो उठकर मुझे बाहर निकलकर गालियां देना शुरू कर देते। लेकिन मेरा एक ही मुतालबा होता कि दादी से कहीं हमें इतने पैसे अभी दे, अब्बू ने मुझे भेजा है। मैं पूरा दिन वहीं गुजार देती और दादी पैसे ना देती तो मैं वहां से वापस ना आती, और महीने में 1-2 बार तो ऐसा ज़रूर होता। मैं दादी की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा पोती बन चुकी थी। वैसे भी कोई उनकी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं नापसंदीदगी की लिस्ट में सबसे अव्वल थी। अब्बू को जब पता चलता कि मैं ऐसे तमाशे करती हूँ तो वो मुझे मारने के लिए दौड़ते थे, और तब मुझे अम्मी बचाती थी, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अब्बू को कहती थी, आपको वो तमाशे नज़र नहीं आते जब आपके बच्चे भूख से मर रहे होते हैं और दूसरों के घर से पकवानों की खुशबू आ रही होती है, तब आपको ये तमाशा नज़र नहीं आता। आपको ये तमाशा नज़र नहीं आता कि मेरी माँ आपके सामने किसी भीख मंगे की तरह हाथ फैलाकर भीख मांगती है। आपको ये नज़र नहीं आता कि जब मैं उनसे पैसे मांगने जाती हूँ और छोटे चच्चा निकलकर मुझे कैसी कैसी नंगी गालियाँ देते हैं। नहीं, आपको ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप उनकी सब की तरफ से अंधे हैं। आपकी बेनाई तो सिर्फ हमारी तरफ से ही खुली है। ये वजह थी कि मैं ना सिर्फ दादी, कंवारे, छोटे चाचा, बल्कि मैं अब्बू की भी सख्त तरीन दुश्मन थी। मैं हक और सच बात करना पसंद करती थी, और उस जमाने में तो कोई भी हक और सच को सुनना नहीं चाहता। ये वजह थी कि मैं सबको खटकती थी। मेरे सब बहन भाई मिडिल क्लास तक पढ़े हुए थे, लेकिन मुझे पढ़ना था, मुझे कुछ बनना था, मुझे अपने घर के हालात बदलने थे। ये वजह थी कि सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया और अच्छे नंबरों की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी और मैं एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन की अहल हो गई थी। लेकिन अब्बू इस मामले में भी टांग अड़ाते। हमारा घर तो बहुत बड़ा था, अलग पोर्शन बने हुए थे, यहाँ तक कि अब्बू के पास तो गाड़ी भी थी, लेकिन ये सारी सहूलतें उनकी बीवी और औलाद के लिए नहीं थी। बाकी पूरे जहान के लिए उनकी सहूलतें हमा वक्त 24 घंटे मुयस्सर होती थीं। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करूँगी, चाहे कितनी ही मुखालफत मुझे ना झेलनी पड़े। सबसे पहले मुखालफत तो मुझे अब्बू की तरफ से झेलनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब मैट्रिक पास थे और किसी ने आगे पढ़ने का नहीं सोचा था। दूसरी मुखालफत मुझे दादी और चच्चा से सहनी पड़ी थी, लेकिन मैं भी अपने नाम की एक थी, सालिहा शफकत। कभी भी हार नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे हालात ने मुझे पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था। मेरे हालात ने मुझे पत्थर के साथ साथ बेहद तल्ख भी बना दिया था। मेरे पूरे वजूद में तल्खी भरी हुई थी और वही तल्खी मैं दूसरों के ऊपर उंडेल देती थी। लेकिन मैं क्या करती कि उसके जिम्मेदार भी मेरे अपने ही थे। बहरहाल मेरी मुखालफत करते करते सब हिम्मत हार गए और मैंने कॉलेज में कदम रख दिया था। वो शहर का बेहतरीन कॉलेज था, जहाँ पर हर किस्म के तबके के लोग पढ़ने आते थे। कुछ इंतहाई एलीट क्लास के थे जो सिर्फ तफरीह के लिए आते थे, कुछ अमीर घराने के थे, कुछ मिडिल क्लास मेरे जैसे स्कॉलरशिप पर आए थे। मेरे किसी से वहाँ कुछ ख़ास दोस्ती नहीं हो पाई थी। हाय हेलो सब से थी, लेकिन मैं बाकायदा दोस्त बनाने की हामी नहीं थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरे घर में अपने मसले कम थे
जो मैं कॉलेज में भी दोस्तियां पालकर मसले मसाइल पाल लूं। वैसे भी कहते हैं कि कॉलेज में आपको दोस्तों से ज्यादा सांप मिलते हैं और आप आस्तीन के सांप को बड़ा करते हैं और फिर यही आपको डस लेते हैं। और फिर मैं अपने घर में भी मेरी इतनी मुखालफत की गई थी तो मैं ऐसी कोई भी मुसीबत अपने सर नहीं डालना चाहती थी। कॉलेज में अच्छा टाइम गुजर जाता। घर की तलखियों से निमटकर कॉलेज में जाकर कुछ रिलैक्स मिलता था। मैं पढ़ाई में अच्छी खासी थी और क्लास की टॉपर थी। ये भी जानती थी कि वहाँ कुछ लोग मुझसे जलते थे। दूसरी वजह भी थी, वो थी मेरी खूबसूरती। मैं बेहद खूबसूरत थी। बिल्कुल लाल टमाटर जैसे गाल थे, यानी कश्मीरी खूबसूरती जो होती है वही मेरी खूबसूरती थी। और अक्सर मुझे इस खूबसूरती को सराहने वाले कॉलेज में बहुत मिले थे, लेकिन मैं किसी को भी मज़बत जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आती थी, इश्क माशूकी के सबक पढ़ने और पढ़ाने नहीं। कॉलेज में एक नया एडमिशन हुआ था। बहरहाल ये कोई एडमिशन की तारीख तो नहीं थी, लेकिन चूंकि वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज था, चुनाचा यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता था। वो हमारी ही क्लास का स्टूडेंट था। उसका नाम सैफ था। उसका ताल्लुक एलीट क्लास से था, जहाँ हर किसी को अपनी जागीर समझा जाता था। किसी को भी हासिल करने के लिए बस पैसे फेंकने का तमाशा करना पड़ता था, फिर सब उनके आगे झुक जाते थे। उनकी भी यही सोच थी, यही अंदाज था कि पैसे फेंककर हर चीज़ उसकी दर्स तर्स में हो जाती है। वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं। मैं इन चक्रों में ना पड़ती अगर डायरेक्ट मुझे ही निशाना ना बनाया जाता। उसने पहले ही दिन अपने तारुफ में पूरी क्लास के सामने कहा था कि वो खूबसूरती का दिलदादा है और खूबसूरती को सराहता है। खूबसूरती उसकी कमज़ोरी है। ये कहते हुए उसकी नज़र सबसे ज़्यादा मुझ पर ठहरी हुई थी और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, पूरी क्लास ने महसूस की थी। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई थी। अब अगर वो खूबसूरती का दिलदादा है और खूबसूरती अगर उसकी कमज़ोरी है, तो उसे चाहिए था कि वो पैसा फेंके और उसका तमाशा देखे और कॉलेज जैसे मोतबर तालीमी इदारे में ऐसे काम ना करे। लेकिन शायद वो इसी काम के लिए आया था। खैर, मुझे क्या परवाह हो सकती थी। उसने बाकायदा मुझे कोई नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी, तो मैं भी क्यों उसकी दुश्मन बनती। आगे की आगे देखी जाएगी। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसे जवाब भी पत्थर से दिया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था। मेरे बराबर बैठी सोबिया ने मुझे कान में कहा था कि इस लड़के के तेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल उसके हुलिये की तरह। और मैं हंस पड़ी थी। उसके बाल कंधों से ज़रा छोटे थे और वो बॉडी बिल्डर था और अच्छे खासे मसल बिल्ड कर चुका था। कान में एक बाली भी पहनी हुई थी और बात करने का अंदाज बिल्कुल किसी बर्गर बच्चे की तरह था। पहली दफ़ा तो मुझे उसे देखते ही हंसी आ गई थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी कि वो कोई गलत मतलब ना समझ ले। मैं, जो कि क्लास की टॉपर थी, तो उसको पिछले कोर्स कवर कराने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और मैं जिम्मेदारी मिलने पर सर पकड़ कर रह गई थी। मैंने सर को मना कर दिया था कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने की अहल नहीं। मैं अगर पढ़ सकती हूँ तो सिर्फ अपने लिए अच्छा पढ़ती हूँ। मैं पढ़ाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और ना ही मैं उसे अच्छी तरह से समझा सकूँगी। लेकिन सर बज़िद थे कि जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। बस यहीं से मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले थे। अब चारों नाचार मुझे सर की बात माननी पड़ी, क्योंकि वो बहुत से मामलात में मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद भी मैं उन्हें मना कर दूं। मैंने हामी भर ली थी और पहले दिन उसे कोर्स की चीदा चीदा बातें समझा दी थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो बातें समझने से ज़्यादा मुझे देखने में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। मैंने सर को ज़बान दी थी और उसे ज़बान का पास निभा रही थी। जिस नज़रों से वो देख रहा था, ऐसी नज़रों पर तो उसे थप्पड़ रसीद करना मेरा फ़र्ज़ बनता था। लेकिन क्या करें,
ہر جگہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. کبھی کبھی اپنے دل کو بھی بند باندھ کر روکنا پڑتا ہے. میں نے بھی اس وقت یہی کیا تھا. انتہا کا بدتمیز انسان تھا. میں نے اتنا پڑھانے سر کھپانے کے باوجود بھی اس نے شکریہ کا لفظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا. خیر، مجھے اس کے شکریہ کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنا بھی کیا انسان بے حس ہو سکتا ہے؟ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے خود بھی کچھ محنت کرنے کا کہوں گی. ویسے بھی میرے پڑھانے کے دوران وہ زیادہ تر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. میں اس کی لاکھ کوششوں پر اکثر پانی پھیر دیتی تھی. ایک دن اس نے مجھے کافی پینے کی آفر کی اور میں نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھا کرے. آئندہ سے ایسی آفر دینے سے پہلے کم از کم مجھے دینے سے پہلے تو 100 بار سوچا کرے. اس دن پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر غصہ دیکھا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ جسے آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور جس کے ساتھ بس چند گھنٹے کے لیے پڑھنے کی غرض سے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اسے آپ کافی کی ہی آفر کر دیں. ویسے بھی امی ابو کی شادی کی مثال دیکھ کر تو میرا تو نہ صرف شادی سے بلکہ محبت سے بھی یقین اٹھ گیا تھا، اور میں نے خود کو یہ باور کرا دیا تھا کہ محبت نام کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی. یہ وقتی کشش ہوتی ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرف لے جاتی ہے، اور جب کشش ختم ہو جاتی ہے تو وہی انسان ایک دوسرے کے بدترین دشمن ثابت ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے ہی گھر میں دیکھا تھا، اور بہت قریب سے دیکھا تھا. جس چیز کو انسان اتنے قریب سے مشاہدہ کرے تو اس چیز کے قریب وہ جانا بھی پسند نہیں کرتا. لہٰذا میرے اندر کی تلخی میں نے اس پر انڈیل دی اور آئندہ اس کو ایسی کسی بھی حرکت سے منع کیا تھا. گھر آ کر بھی میں اس بارے میں سوچتی رہی، یہ لڑکا کہیں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے. میرے اندر سے آواز آئی تھی، میں اسے مصیبت نہیں بننے دوں گی. میں نے خود کو تسلی دی اور پڑھائی میں مگن ہو گئی. آج پھر امی نے مجھے پیسے لینے کے لیے دادی کے پاس بھیجا تھا، اور دروازہ اتفاقاً کھلا ہوا تھا اور دادی میرے سامنے ہی بیٹھی پیسے گن رہی تھی. اب تو میرے لیے کام اور زیادہ آسان ہو گیا تھا. میں نے دادی سے جاتے ہی 5,000 کی ڈیمانڈ کی تھی، اور دادی نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے میرا دماغ ہی چل گیا ہے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ امی کو گھر خرچے کے لیے چاہیے، اور ویسے بھی اس بار بل بہت زیادہ آیا ہے، چنانچہ ابو نے ہی بھیجا ہے. اور یہ آخری ڈائلاگ دادی کو اور مجھے، ہم دونوں کو پتا تھا کہ یہ خالص میرا ڈائلاگ تھا، اور ابو مجھے کبھی بھی اس طرح نہیں بھیجتے تھے. بلکہ وہ کیوں بھیجیں گے، مجھے تو امی بھیجتی تھیں. اس دفعہ دادی نے چون چرا نہیں کی، بلکہ تھوڑی سی بحث کے بعد ہی مجھے 5,000 پکڑا دیے. میں نے ہنس کر دادی سے کہا تھا، کیا ہوا دادی، کوئی لاٹری واٹری نکل آئی ہے کیا؟ اس بار آپ نے مجھے پیسے ایسے ہی پکڑا دیے. میں ان کا جواب سنے بغیر اپنے پوشن میں آ گئی تھی. کاش میں ان کا جواب سن لیتی تو مجھے پتا چل جاتا کہ ان کی کیا پلاننگ تھی. میں وہاں پوشن میں گئی تو امی رو رہی تھیں اور میری دوسری بہنیں امی کو چپ کروا رہی تھیں. بھائی ابو کو برا بھلا کہہ رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو میں پیسے لینے گئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، سب نارمل تھا، اور اب جب پیسے لے کر واپس آئی ہوں تو امی کیوں رو رہی ہیں؟ پوچھنے پر پتا چلا تھا کہ اس بار ابو نے نہ صرف انہیں مارا تھا بلکہ طلاق کی دھمکی دی تھی. یہ دھمکی انہوں نے زندگی میں پہلی بار دی تھی. میرا خون کھول اٹھا تھا، لیکن میں اس بار کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابو کے منہ سے اگر طلاق کا لفظ نکل جاتا تو پھر اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور امی کو 5,000 پکڑا دیے تھے جو دادی نے دیے تھے. مجھے دادی کے 5,000 دینا سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ دادی نے ہی ابو کو طلاق کی دھمکی دینے کا مشورہ دیا ہوگا. آج میں بالکل مایوس ہو گئی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ کیا زندگی کبھی بدلے گی بھی یا ایسے ہی رہے گی. اسی سوچ میں سارا دن گزر گیا تھا، یہاں تک کہ میں کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا پائی تھی. کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا. انسان بھی آخر کب تک پر امید اور مضبوط رہ سکتا ہے؟
हालात के तेज झक्कड़ जब चलते हैं तो मजबूत से मजबूत तरीन इंसान को भी उड़ा ले जाते हैं, और मेरे साथ भी इस वक्त यही हो रहा था। मैं शिद्दत से सोच रही थी कि पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी ही कर लूं। वो छोटी मोटी नौकरी, कोई ट्यूशन ही पढ़ा लूं ताकि अम्मी का सहारा तो बन सकूं, ताकि अब्बू दोबारा तलाक की धमकी ना दे सकें। कभी कभी मैं बैठकर यही सोचा करती कि अम्मी का कसूर आखिर क्या था, लेकिन फिर मुझे उसका कोई जवाब ना मिलता। थक हार कर मैं बिला आखिर सो गई थी। अगले दिन मेरा टेस्ट भी था और मैंने उसकी तैयारी भी नहीं की थी। घर के हालात इतने बदतरीन हों तो कैसा टेस्ट, कैसे पेपर। मैंने भाई को मशवरा दिया कि अब वो भी किसी मैकेनिक के पास कारीगर के तौर पर लग जाए, काम भी सीख लेगा और थोड़े बहुत पैसे भी घर में आ जाएंगे। वो राजी हो गया था, लेकिन कोई उसे कारीगर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब अब्बू को पहचानते थे कि अब्बू तो बहुत पैसे वाले हैं, फिर उनके लाडले बिगड़े कैसे किसी मैकेनिक का काम कर सकेंगे। हालांकि वो लोग नहीं जानते थे कि घर के हालात तो कुछ और ही हैं और उनकी सोच से यकसर मुख्तलिफ हैं। खैर, अम्मी ने भी 1-2 जगह बात कर रखी थी और दोनों भाइयों को उसी जगह नौकरी मिल गई थी। नौकरी सेल्समैन की थी और ड्यूटी दोनों की अलग अलग थी। घर के हालात, उनकी पहली सैलरी आई थी तो थोड़े बहुत बेहतर हुए थे, और इस दफ़ा पहली बार अम्मी ने मुझे दादी से पैसे लेने नहीं भेजा था। उस दिन मैं खुश थी, बहुत खुश थी। मुझे अपने बदतरीन हालात में उम्मीद की किरण नजर आई थी। अगले दिन कॉलेज में मेरा टेस्ट था, जो कुछ खास नहीं हुआ था, क्योंकि रात को मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। और जब टेस्ट का रिजल्ट सामने आया, जिस शख्स ने मेरा मजाक बनाया था वो सैफ ही था। खैर, मुझे उसके मजाक बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने कॉलेज में जगह जगह सालेहा लूजर के पोस्टर लगे हुए देखे थे तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं उसी वक्त सैफ के सर पर पहुंच गई और उसे वही पोस्टर दिखाकर सवाल किया कि वो कौन सा मेरा चाचा मामा लगता है जो इस तरह का मजाक मुझसे कर सकता है। मेरा लहजा सुनकर उसे शौक लगा था। मैंने उसे वार्निंग दी थी और तेज लहजे में कहा था कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि मेरा और उसका कोई मजाक नहीं और ना ही हम कोई दोस्त हैं जो मैं उसका कोई ऐसा मजाक आइंदा बर्दाश्त करूंगी। अगर उसने आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी तेज आवाज में शोर करने पर आस पास बहुत से स्टूडेंट जमा हो गए थे और मेरी जुर्रत पर बाकायदा 2-3 लड़कियों ने तो तालियां बजाई थीं, लेकिन मुझे उन तालियों की सताइश की जरूरत नहीं थी। मेरी अना पर ज़र्ब पड़ी थी और उसी का बदला मैंने चुकाया था। उसे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था कि मैं फारिग औकात में भी उसको पिछला कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए ख्वार होती थी, और उसका सिला उसने मुझे इस तरह दिया था। इस बात को पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी और मुझे कोई परवाह भी नहीं थी। बहुत सी लड़कियां कॉलेज में उसके आगे पीछे घूमती थीं, उसकी अमारत से मुतासिर होती थीं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं थी। 1 हफ्ते बाद मुझे अपनी सीट पर एक नोट लिखा हुआ मिला, जिस पर वाज़ेहा लिखा हुआ था कि खूबसूरत लड़की, उस दिन की हरकत के लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूं। मैंने आस पास देखा तो कोई नहीं था। मैंने चिट फाड़ कर फेंक दी थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बात ख़त्म हो गई थी, गुजर गई थी, तो बस ठीक था। अब इस बात को दोबारा उछालने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो सैफ क्यों मेरे पीछे लग गया है। शायद उसे मेरी खूबसूरती पसंद आ गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ज़ाहिरी खूबसूरती मेरी खूबसूरती है। मेरे अंदर जितनी तलखी भरी हुई है, अगर वो मुझसे दोस्ती करना भी चाहता है तो वो मुझसे भी ज़्यादा तल्ख हो जाएगा। मेरे साथ रहकर ये सोचकर मैं मुस्कुरा दी थी। सैफ ने सिर्फ मुस्कुराने का मंजर देखा था, उसने चिट फाड़ कर फेंकने का मंजर नहीं देखा था। उसने मेरे मुस्कुराने को कुछ और ही समझ लिया था और मुझे इस बात की कतन कोई खबर नहीं थी। अगले 2-3 दिन तक मैं कॉलेज नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे घर में एक तूफान उठ गया था। अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी
और उन्होंने अम्मी से पोर्शन खाली करने का हुक्म दिया था। अम्मी समेत हम सब बहन भाई एक सदमे की कैफियत में थे। वजह अब्बू की दूसरी शादी नहीं थी। हमें उनसे हर किस्म की तवक्को थी, लेकिन कौन अपने बच्चों और बीवी के सर से छत छीनता है। हमारे पास तो यही एक छत थी, वो भी उन्हीं की फराम करदा थी। अब वो हमसे हमारे पैरों तले से ज़मीन और हमारे सर से छत खींच रहे थे और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भाई ने मशवरा दिया था कि हम किराए के घर में चले जाते हैं, लेकिन अम्मी ने उन्हें बताया था कि उनकी तनख्वाह से घर का खर्चा ही पूरा हो पाता है, किराया कहाँ से भरेंगे। अब्बू ने एक एहसाने अजीम हमारे साथ ये किया कि घर के साथ बने हुए सर्वेंट क्वार्टर में, जिसमें कुछ अरसा पहले नौकर रहते थे, वो हमें इनायत कर दिया। ये सोचे समझे बगैर के एक ही कमरे का घर था, हम उसमें कैसे रह सकते थे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह न थी। उन्होंने हम 6 जानों को एक कमरे के घर में धकेला और ख़ुद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कुल 2 जाने 3 कमरों के पोर्शन में रह रहे थे। ये कैसी नाइंसाफ़ी थी। इस बात ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था और मेरा दिमाग जैसे माऊफ सा हो गया। मेरी सारी बहादुरी कहीं दूर खाई में जैसे गिर गई थी। मैंने कॉलेज छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे हिम्मत दी कि बस अब आखिरी साल है, उसके बाद तो अच्छी जॉब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी, इतना कि हमारे घर में फाके नहीं होंगे। मैं तकरीबन 5 दिन बाद कॉलेज वापस आई और वहाँ मेरे लिए एक और तमाशा खड़ा हुआ था। मेरा जहन तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैं कॉरिडोर से होकर क्लास में जा रही थी कि अचानक सैफ मेरे सामने आ गया और अपने घुटनों पर झुककर उसने मेरी तरफ गुलाबों का बुके लहराया था। मैं उस अचानक उफ्ताद पर हक्का बक्का होने के साथ साथ परेशान हो गई थी, क्योंकि आसपास बहुत से स्टूडेंट जमा हो गए थे। ये क्या हो रहा था? क्या वो मुझे प्रपोज कर रहा था? ये क्या बदतमीजी थी? उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे दिमाग में कैसे झक्कड़ चल रहे हैं। मैंने दबी दबी आवाज़ में उसे तंबीह की कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। मैंने आंखों के इशारे से भी उसे मना किया कि यह तमाशा बंद करे, लेकिन वो नहीं माना था। बिलाखिर मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ गया। मैंने आगे बढ़कर न सिर्फ गुलाबों का बुके उससे लेकर फेंका था, बल्कि उसे थप्पड़ भी रसीद कर दिया था और साथ ही साथ ये कहा था कि ऐसे तमाशे मैं पसंद नहीं करती। तुम क्यों मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने आ जाते हो? पूरे मजमे को सांप सूंघ गया था, लेकिन मुझे परवाह न थी। मैं क्लास में आ गई और उस दिन के बाद से दोबारा कॉलेज में सैफ फिर दिखाई ना दिया। मैंने पीछे मुड़कर उसके तासुरात भी ना देखे थे। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके तासुरात देखने की? मैं उसे मोहब्बत थोड़ी ही ना करती थी कि मैं उसके तासुरात देखने के लिए पीछे मुड़कर देखूं। मेरे अपने ज़िंदगी में इतने मसले थे कि मैं कोई और मसले अपनी ज़िंदगी में नहीं पालना चाहती थी, लेकिन एलीट क्लास के लोग कहाँ समझते हैं। उस दिन के बाद से एक अजीब वाक़या मेरे साथ लगातार हो रहा था, और वो वाक़या ये था कि कॉलेज के बाहर रोज़ एक फ़कीर खड़ा होता। जैसे ही मैं बाहर निकलती वो लपक कर मेरे पास आता था। उसका हुलिया इंतहाई ख़राब होता था, बाल खिचड़ी नुमा, कपड़े इंतहाई गंदे और चेहरे पर मट्टी जैसे चिपक सी गई थी। वो मेरे पास आकर मुझे एक ही बात कहता कि मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। मैं उसे नज़रअंदाज करके बढ़ जाती। ये मुसलसल 5वां दिन था कि उसने यही अंदाज इख्तियार किया हुआ था। अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने उससे कहा था कि उसे क्या मसला है, क्या बात मानूं मैं उसकी। जब उसने मुझसे एक बात कही थी और मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे निकाह कर ले, वरना हमेशा हमेशा के लिए बर्बादियां मेरा मुकद्दर बन जाएंगी। मैं बस उसे घूर कर रह गई थी। अब ये फ़कीर रह गया था मेरी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी करने के लिए। मैं दिल ही दिल में सोचा और कुछ कहे बिना वहाँ से वापस आ गई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो रोज़ यही बात करता, और अजीब बात थी कि वो जब भी मुझसे ये बात करता तब भी मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता। आज भी यही हुआ था।
कि रात भर अम्मी अब्बू के झगड़े की वजह से मेरी आंख लेट खुली थी। आज कॉलेज का पेपर था, लिहाजा जल्दी से तैयार होकर मैं पेपर देने के लिए रवाना हो गई और वापसी में मुझे वो दोबारा मिल गया। उसने वही बात दोहराई थी कि मुझसे निकाह कर लो वरना हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस दिन जैसे ही मैं बस में आ रही थी, टायर इस जोर से फटा था कि पूरी बस हिलकर रह गई थी। सिर्फ यही एक वाकया नहीं था, वो मुझे जब भी कुछ कहता मेरे साथ कुछ उल्टा जरूर होता। एक दिन मेरा पर्स मेरे पास से गायब हो गया और मैं रिक्शे में बैठ गई थी। घर आकर जब मैंने उसे किराया देने के लिए पर्स में हाथ डाला तो पता चला कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। उस रिक्शे वाले ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि मैं घर से पैसे लेकर उसे दे देती हूँ, लेकिन वो नहीं माना था और उसने जो तमाशा लगाया था वो एक अलग कहानी थी। इसी तरह वो रोज़ मुझसे एक ही बात का मुतालबा करता था। अब तो मेरी आदत सी हो गई थी उसका मुतालबा सुनने की। और एक बात मैंने नोट की थी कि वो बाकी तमाम लड़कियों को कुछ भी नहीं कहता था, उनसे सिर्फ भीख मांगता था। मुझसे भीख ना मांगता, लेकिन मुझसे ऐसी फजूल बातें करता। कभी कभी लगता था कि मेरी खूबसूरती भी मेरा जुर्म ही है, हालांकि उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। हस्बे मामूल उसने मुझसे यही बात दोहराई थी। मैं चिढ़ सी गई और मैंने उसे सिर्फ इतना जवाब दिया कि मुकद्दर बनाने वाला अल्लाह है, तुम्हें कोई गैब का इल्म नहीं कि तुम किसी की बर्बादियां देख सको। वो जवाबन इतने बुरे तरीके से हंसा था कि मेरा वहां से जाना ही मुनासिब था। उस रोज सोबिया की बर्थडे थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने मुझे भी होटल में मदऊ कर रखा था। वो लोग केक काट कर और खाना खाकर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी और मैं अकेली होटल में बैठी रह गई कि उन्होंने मेरे साथ कोई मजाक किया था। जब वेटर बिल के लिए आया था तो मैंने कहा कि मुझे तो मेरी दोस्त अपने साथ लाई थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें कहा था कि वो कैमरे चेक कर लें, मैं अकेली नहीं थी, मेरी दोस्तें ही मेरे साथ हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी दोस्तें अगर हैं तो कहाँ हैं। अब मेरा माथा ठनका था। उन्होंने मेरे साथ क्या खेल खेला था, या ये मेरी बदकिस्मती ही थी। होटल के मैनेजर ने मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और मैं माऊफ होते जहन के साथ उसकी बात सुनती जा रही थी। यहाँ तक कि सब जमा हो गए और मुझे माफ़ करने का कह रहे थे। मामला बढ़ गया था कि मुझे मेरी दोस्तें आती हुई दिखाई दी और इतने लोगों का हुजूम देखकर वो समझ गई थीं कि क्या बात है। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे और मैं उनसे नज़र मिलाए बगैर वहाँ से पलट गई थी। मैं अपना बिल देना ना भूली थी, क्योंकि मैंने वहाँ से चावल ही खाए थे और चावल के ही पैसे अदा करके मैं बाहर आ गई थी। अब मैं किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। जैसे ही घर लौटी तो अलग ही तमाशा मेरा मुंतज़िर था। घर के कॉरिडोर में लॉन के करीब मेरा छोटा कवारा चचा और अब्बू की नई दुल्हन इंतहाई करीब खड़े न जाने कौन से राजो नियाज कर रहे थे। मैंने उन्हें देख लिया था, उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मैंने बुलंद आवाज में कहा था कि मैं इन दोनों की हरकतें सबके सामने बयान कर दूंगी, जिस पर नई नवेली दुल्हन ने अंदर जाकर कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन कमारा चचा कड़े तेवरों के साथ मेरी जानिब बढ़ा था। उसकी नीयत मुझे गलत लग रही थी और ऐसा ही था। उसने मेरा दुपट्टा खींचा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मेरी चीखों पुकार करने से सब जमा हो गए और उसका सारा खेल बिगड़ गया था। उसका बदला उसने यूं लिया था कि उसने मुझ पर ही बदकिरदारी और बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं तो वैसे ही सबकी दुश्मन थी और नापसंदीदा थी। किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि चचा ने तो कुरान पर भी हाथ रखकर कसम खाई थी। अब मेरे कहने का कोई फायदा नहीं था। मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया था।
मैं जीना ही नहीं चाहती थी, मैं मर जाना चाहती थी। और इसी ख्याल के तहत मैं घर से निकल गई थी। अचानक मुझे उस फकीर का ख्याल आया। मुझे तो वैसे भी पूरे खानदान में बदकिरदार और बदकार मशहूर कर दिया गया था। अब वहां मेरी वापसी का कोई इम्कान नहीं था। मैं उसी के पास पहुंच गई और उसे कहा था कि मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। वो हद दर्जा हैरान था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नामालूम जगह की तरफ ले जा रहा था। मैं होशो हवास से बेगाना थी। मेरे जहन में तो सिर्फ मुझ पर टूटने वाली कयामत ही गुजर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो फकीर मुझे कहाँ ले जा रहा है। मुझे याद था तो सिर्फ इतना कि मेरे साथ क्या कुछ गलत नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी उस फकीर के कहने के मुताबिक सच में तबाह हो गई थी। वो फकीर मुझे एक बहुत बड़े, शानदार और आलीशान घर में ले आया था, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी हैरानी पर वो कहकहा लगाकर हंस उठा और मैं शदीद हरासा सी उसे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर लगे मांस को चमड़ी की तरह खींचा था और मैं वहां से कहीं भाग जाना चाहती थी। वो फकीर कोई और नहीं बल्कि सैफ था। उसने आगे बढ़कर मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए थे और इस जोर से झटका दिया कि मेरी फलक जगाफ चीख बुलंद हुई। हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे साथ अब तक जो भी बुरा होता आ रहा है उसमें मेरा ही हाथ था। कोई इत्तेफाक नहीं था ये सब। मैंने तुम्हें डराने के लिए किया था और वो जो तुम्हारे घर में हुआ वो भी सब प्लान था। तुम्हारे चचा को तो पैसे देकर खरीदना इंतहाई आसान था। जानती हो ये सब मैंने क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती मुझे भा गई थी। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि बाजारे हुस्न में इस खूबसूरती के बहुत दाम लगेंगे। वो ये कहकर शैतानी हंसी हंसा। इससे ना सिर्फ मेरा बदला पूरा होगा बल्कि मुझे मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने मौका देखकर बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, लेकिन किसी ने बहुत तेजी से मेरे कंधे में कुछ चुभोया था और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। आंख खुली तो खुद को एक और जगह पर देखा। वहां के लोग अलग ही तरह के थे। मैं कहाँ आ गई थी? मैंने जहन पर जोर दिया, शायद ही कोई और ही मुल्क था। वो लोग पास में किसी और जबान में बात कर रहे थे। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो सैफ सामने ही मौजूद था। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं अभी भी उसकी हिरासत में थी और शायद वो लोग मुझे किसी और मुल्क के बाजारे हुस्न में बेच देना चाहते थे। थोड़ा गौर करने पर मालूम हुआ कि मैं थाई एयरपोर्ट पर हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर आज टूट कर रोना आया था। मैं किस जाल में फंस गई थी। काश मैं पैदा ही ना होती। यूं रोकर मैंने हाल बुरा कर लिया था। सैफ ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई थी। जैसे ही वो इधर उधर हुआ, मेरे पास कोई शख्स पी कैप और मास्क पहने बैठा था। उसने मुझसे उर्दू में बात की। मैं हैरानी से मुड़ी थी। उसने कहा था कि अगर जिंदगी प्यारी है तो मुझसे ये कील लेकर सामने सीट पर लगे बटन के अंदर डाल दो, ताकि तुम समेत और बहुत से लोगों को बचाया जा सके। मैंने बगैर सोचे समझे कील लेकर बटन में डाल दी और एक जोरदार धमाके से एयरपोर्ट गूंज उठा था। वो महज धमाका था जो तवज्जो बटाने के लिए चंद गैसों के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसी दौरान गर्दो गुबार का एक तूफान उठा और कोई मेरा हाथ पकड़कर एक जानिब को भागा। उसके बाद पास से गुजरती गाड़ी रुकी और वो मुझे उसमें बिठाकर खुद भी बैठ गया। मैं हवास बाख्ता सी मुसलसल खांस रही थी। उसने मुझे पानी दिया। मैंने सर उठाकर उसे देखा और अपनी जगह जम सी गई थी। अब मुझे जिंदगी और कितना हैरान करेगी। वहां कोई और नहीं, मेरा क्लास फेलो हमजा था, जो क्लास का सबसे बेहतरीन बंदा था। मुझे भी पसंद था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसने मजीद बताया कि वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है और वहाँ एक मिशन के तहत तैनात था।
اس کا مشن سیف جیسے بندوں کے خلاف تھا جو لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کر انہیں بازار حسن میں بیچ دیا کرتے تھے، لیکن تمہارے ساتھ تو اس نے بہت لمبا گیم کھیلا تھا۔ افسوس تمہارے گھر والے بھی۔ وہ رک گیا تھا، پھر مجھے دیکھا تھا۔ میں رو پڑی۔ میں بے یارو مددگار تھی۔ اس نے مجھے سیف سے بچایا تھا۔ زمانہ ہزاروں سیف سے بھرا پڑا تھا۔ میں گھر چھوڑ چکی تھی، کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے بس اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی، میری بیوی بن کر؟ حمزہ کی آواز نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ اس سے خوبصورت اظہار بھی بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں شروع دن سے ہی پسند کرتا ہوں، لیکن میرا مشن کچھ اور تھا، اس لیے کہہ ہی نہ سکا۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں اور میں تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ ویسے بھی سیف نے تمہارے چچا کو خرید لیا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور ایک تحفظ کا احساس میرے رگوں پے میں دوڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ میری زندگی پر چھائے کالے بادل اب ہٹ گئے تھے اور صاف آسمان میرا منتظر تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔